Welcome SVPites to presentation on chapter number 3, the T's, and this is part 2 of our presentation. So students, in our previous presentation we had done question A1, right? Now let's continue further. A2, answer these questions. Number 1, who is the speaker talking to? Is she happy with the listener, right? So the one who speaks is called speaker. जो बोलता है, स्पीक करता है, उसे क्या कहते हैं? स्पीकर. एंड द वन हु लिसन्स, और जो लिसन करता है, सुनता है, उसे क्या कहते हैं? लिसनर. ओके, सो दीज आर द टू वर्ड्स, स्पीकर, द पर्सन हु स्पीक्स, एंड द लिसनर. ओके, LISTENER, लिसनर. दैट मीन्स जो लिसन करता है, राइट? सो डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन समझ में आया? हु इज द स्पीकर टॉकिंग टू? दैट मीन्स स्पीकर जो है वो किससे टॉक कर रहा है, किससे बात कर रहा है. ओके, एंड देन इज शी हैप्पी विद द लिसनर? दैट मीन्स स्पीकर कौन है बच्चों? हु इज द स्पीकर? स्पीकर इज अ गर्ल, दैट इज वाई शी इज यूज्ड. क्लियर? सो इज शी हैप्पी मतलब जो स्पीकर है वो क्या हैप्पी है क्या विद द लिसनर? लिसनर से हैप्पी है क्या? सो नाउ लेट्स गो टू द पोम. लेट्स रिसाइट द पोम अगेन. यू आर अ न्यूसेंस, आई डिक्लेयर, यू टीज मी सो, इट इज़ नॉट फेयर. सो यहाँ पे बच्चों यू किसके लिए आया है? यू आया है विंड के लिए. तो लिसनर जो है कौन है? आप किससे बात कर रहे हैं? वो होता है लिसनर. तो यहाँ पे जो ये गर्ल है, गर्ल तो है स्पीकर. ओके, गर्ल इज द स्पीकर एंड गर्ल किससे बात कर रही है? विंड से. सो विंड इज द लिसनर, राइट? सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द स्पीकर is talking to wind. Okay, the speaker is talking to wind. Now next part, is she happy with the listener? So you can write no. Okay, she is not happy with the listener. स्पीकर जो है वो लिसनर से हैप्पी नहीं है, बिकॉज ये जो लिसनर है वो क्या कर रहा है? स्पीकर को टीज कर रहा है, राइट? Now next one, how does the listener tease the speaker? How means कैसे. So कैसे जो है listener tease कर रहा है speaker को. So do you know the answer? The answer is the listener pounces on the speaker, comma, seizes her head एंड क्लच हर हेयर. तो जहाँ जहाँ पे माई है, माई की जगह पे आप क्या कर दोगे? हर, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पीकर. स्पीकर के जो है बाल को जो है क्लच करता है, दैट मीन्स हर हेयर, राइट? एंड टेयर द लीव्स एंड ब्लॉसम फ्रॉम द पेयर. सो दैट इज हाउ द लिसनर इज टीजिंग द स्पीकर. कैसे? The listener pounces on her from everywhere, seizes her head and clutch her hair, right? Tie her clothes in knots and tear the leaves and blossom from the pear. Okay, so this is the answer, how listener teases the speaker, right? Now number 3, how does the listener help the speaker? So same question like number 2. The only difference is here the question is asking how does the listener tease, और यहाँ पे how does the listener help. So if you have read the poem carefully, जो listener है, listener क्या है? दोनों काम करता है. स्पीकर को टीज भी करता है, और टीज कैसे करता है? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू. At the same time, the listener also helps the speaker. How? Let us see. The listener helps the speaker
टू सेल, माई की जगह पे क्या यूज़ करोगे? हर, ओके, हर बोट, और फ्लाई हर काइट, ओके, तो माई की जगह पे हर, एंड दिस इज योर आंसर. क्लियर? नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन A3. Now A3, the think and answer. The speaker in the poem is confused. Okay, what do you mean by confused? मतलब थोड़ा confused रहना, समझ में नहीं आना. And what about the confusion is about her feelings, okay, for the wind. Why? So did you understand the question? The speaker in the poem, ये जो poem में speaker है, is confused and confused about her feelings. उसकी जो feelings है ना, for the wind के लिए उसकी feelings है, उसको लेके speaker confused है. Why? So you have to answer why and give two reasons for your answer. You have to give two reasons for your answer. So do you know the answer? So this is the poem, right? In this poem, what happens? The speaker is confused about her feelings for the wind because wind teases the speaker. Okay? Wind जो है वो speaker को tease भी कर रही है. So wind teases the speaker and wind also helps the speaker. Wind जो है tease भी कर रही है और wind जो है speaker की help भी कर रही है. Okay? So the speaker in the poem is confused about her feelings for the wind because wind is teasing the speaker and helping the speaker also, right? And give two reasons. So the confusion about the feeling क्या है? दो sentences में आपको पता चल रही है. The speaker wants to set a snare, right? So the speaker wishes to set a snare for the wind, but speaker also says that she could not manage without wind. तो confusion कहाँ से झलका बच्चों इसमें? एक तो she wishes to set a snare, मतलब उसके लिए जाल बिछाने का सोच रही है विंड के लिए, and she also thinks that she could not manage without wind. सो ये कन्फ्यूजन है. एक तरफ जाल बिछा रही है और एक तरफ कह रही है कि भाई मैं तो तुम्हारे बिना मैनेज ही नहीं कर सकती, रह ही नहीं सकती. सो दिस इज द कन्फ्यूजन. डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ नंबर 2, समटाइम्स मीन्स कभी कभी. ओके, विंड हेल्प्स अस. विंड जो है वो हेल्प करती है, बट इट कैन ऑल्सो हार्म अस. HARM, हार्म मतलब नुकसान करना. ओके, डू यू एग्री? क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? क्वेश्चन मार्क. एंड इफ यू एग्री, वाई? क्यों? राइट? सो यस, विंड हेल्प्स अस बट इट कैन ऑल्सो हार्म अस. विंड हेल्प्स अस बाय ड्राइंग आवर क्लॉथ्स. ओके, वी फील कूल एंड फ्रेश. We fly our kite and sail our boat, right? So these are the reasons how wind can help us. But at the same time, wind can also harm us. If wind is very strong, if there is a storm, it can blow away trees, it can uproot the trees, right? And there can be lot of harm, right? लाइक अपरूटिंग द इलेक्ट्रिकल पोल्स. जो बिजली के खंभे हैं वो भी उखड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा अगर हवा चलती है, तूफान आता है तो. एंड द ट्रीज आर ऑल्सो अपरूटेड. अपरूट मतलब उखड़ जाना, पेड़ भी उखड़ जाते हैं, राइट? सो देन एट लाइक लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स आर ऑल्सो torn, right? So that is how wind can harm us. Clear? So what is the answer? Yes, wind helps us and also can harm us. Wind helps us by drying our clothes. We feel cool and fresh.
fly our kite and sail our boat, right? And wind harms us because strong wind can cause uprooting of trees, electrical poles, and tearing of blossoms and flowers, right? Now A4, learn interesting things. In the poem, the speaker is talking to the wind in poetry, okay? So इस जो पोम में है, स्पीकर किससे टॉक कर रहा है, किससे बात कर रहा है? टू द विंड, राइट? When the poet or the speaker imagines, तो जब जो है, when means जब, the poet or the speaker, poet या speaker जो है imagine करता है and talks to an absent someone or a thing or an idea, it is called an apostrophe. Okay? तो अब what did you understand with this? Wind जो है, wind हमें दिखती है क्या? Can we see wind? We cannot. Wind basically क्या है? Wind एक basically एक absent चीज़ है. Wind is an absent thing. Similarly, say ghost. Ghost is absent someone. Ghost देखते थोड़ा ना है, तो ghost is absent someone. Absent मतलब जो present ना हो. So when the speaker or the poet imagines, किसी चीज़ को imagine करता है and talk करता है, उससे बातें करता है to an absent someone or a thing or an idea, या किसी idea के साथ में, okay? Idea क्या हो सकता है? For example happiness, कि suppose happiness से मैं बात कर रहा हूँ, so that's an idea. Happiness is basically what? It's an idea, right? So in such situation दिस इज कॉल्ड एन एपोस्ट्रोफे. इसको क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफे. फॉर एग्जाम्पल कोई जो है स्टार से बात कर रहा है, राइट? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. ओके, सो इसमें क्या है? स्टार से कोई बात कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. तो ये क्या है? बेसिकली ये जो फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है वो होती है एपोस्ट्रोफे. ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ एपोस्ट्रोफे एंड गेस हु द पोएट इज स्पीकिंग टू. सो वॉट हैव टू डू? रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. आपको जो फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हैं नीचे दिए हुए एग्जाम्पल्स वो रीड करने हैं ऑफ एपोस्ट्रोफे के. नाउ यू नो व्हाट इज एपोस्ट्रोफे, राइट? एंड गेस, और आपको क्या करना है? गेस करना है, आपको अनुमान लगाना है हु द पोएट इज स्पीकिंग टू. दैट मीन्स पोएट जो है वो किससे बात कर रहा है. चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. आपको चूज करना है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. एंड व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव? ओशन, OCEAN, ओशन. ओशन होता है समंदर. देन स्टार एंड क्रिसमस ट्री, राइट? नाउ लेट अस सी. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऑल ऑफ यू नो, राइट? सबको आती है पोम. अब स्टार से बात कर रहा है, एपोस्ट्रोफे हुआ ना, क्योंकि स्टार क्या है? एक इट्स अ थिंग, राइट? बट इट कैन नॉट टॉक. स्टार बात नहीं कर सकता ना. Then number 2. What is number 2? Roll on thou deep and dark blue. अब deep and dark क्या होता है? Deep, dark and blue क्या होता है? Ocean. Okay? So here this is about ocean. Okay? So roll on thou deep and dark blue ocean. Roll. Right? Now the third one. नाउ नेक्स्ट वन, ओ. अब बचा क्या हमारे पास? ओनली क्रिसमस ट्री, राइट? सो ओ क्रिसमस ट्री, हाउ लवली आर योर ब्रांचेस. ओके, सो इसमें जो है स्पीकर किससे बात कर रहा है? क्रिसमस ट्री से. अगेन क्रिसमस ट्री क्या है? एक एब्सेंट थिंग है जो बात नहीं कर सकती, राइट? सो ओ क्रिसमस ट्री, हाउ लवली आर योर ब्रांचेस. डन? एक्सेलेंट. Now in section B we will learn how to read the dictionary. डिक्शनरी कैसे रीड करते हैं ये हम समझेंगे. सो बच्चों, डिक्शनरी जो है we read in alphabetical order. Now how you say alphabetical order? So now we are given these words. Let us see. Number 1, vase. Vase starts with V.
then diamond starts with D, then exams starts with E, then hospital starts with H, computer starts with C, coins again starts with C, party with P, forest with F, airport with A and jar with J. तो व्हाट यू हैव टू डू बच्चों, सबसे पहले आप देखिए कि जो वर्ड है वो किससे चालू हो रहा है. तो इसमें द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड अल्फ़ाबेटिकली आपको देखना है. तो इन सब में एयरपोर्ट जो है वो ए से चालू होता है और ए सबसे पहले आता है. तो डिक्शनरी में जब आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, एयरपोर्ट. देन कोई बी से चालू है, नो. देन है सी से चालू, राइट, कंप्यूटर एंड कॉइन्स. अब बोथ आर स्टार्टिंग विद सी. नाउ विच वर्ड विल कम फर्स्ट इन डिक्शनरी, कंप्यूटर COMPUTER एंड कॉइन COINS. सो दोनों का फर्स्ट लेटर क्या है, सी है. उस केस में हम क्या करेंगे, उसका सेकेंड अल्फ़ाबेट देखेंगे. सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है, यहाँ पे CO O है और कॉइन का भी O है. दिस इज ऑल्सो सेम. सो नाउ वी विल लुक फॉर द थर्ड अल्फ़ाबेट, COM. ओके, एंड हियर इट इज COI. सो अल्फ़ाबेटिकली कौन सा पहले आता है, I कम्स फर्स्ट, राइट. I कम्स फर्स्ट. तो कॉइन जो है पहले आएगा डिक्शनरी में एंड देन इट विल बी कंप्यूटर. ओके, देन आफ्टर C D. तो डायमंड स्टार्ट्स विद D. सो कॉइन, देन कंप्यूटर, देन डायमंड. डिक्शनरी में जो है आप सर्च करेंगे तो आपको इस ऑर्डर मिलेंगे. एंड आफ्टर डायमंड यू विल गेट एग्जाम्स. ओके, एंड आफ्टर एग्जाम forest, right, after E comes F. Okay, then forest, then EF G से कुछ चालू हो रहा है, no. Then H hospital. Okay, then I J K L J आया. So J for jar. तो अल्फ़ाबेटिकली आपको डिक्शनरी में J मिलेगा. एंड देन यू कैन फाइंड पार्टी स्टार्ट्स विद P एंड फाइनली वेस आएगा बिकॉज इट स्टार्ट्स विद V. सो आप जब भी जो वर्ड्स हैं उनको आप सर्च करेंगे डिक्शनरी में तो आप कैसे सर्च करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली. एंड हाउ यू विल सर्च, जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन्ड यू, राइट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटेंस. तो सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं. सो एवरी सेंटेंस हैज़ 3 मेन पार्ट्स. किसी भी सेंटेंस के 3 मेन पार्ट होते हैं. एंड व्हाट आर द मेन पार्ट्स, द सब्जेक्ट नंबर 1, देन प्रेडिकेट नंबर 2 एंड द ऑब्जेक्ट नंबर 3. ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस होगा उसमें आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट. अब क्या सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है जो एक्शन करता है, उसमें जो काम करता है सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, द स्पीकर वॉन्ट्स टू कैच द विंड. हु वॉन्ट्स टू कैच द विंड, कौन विंड को कैच करना चाहता है, द स्पीकर. सो सब्जेक्ट कौन है, द स्पीकर. ओके, सो द वन हु डज द वर्क. सो द सब्जेक्ट is basically a person or thing that the sentence is about, जिसके बारे में वो सेंटेंस है और जो उस सेंटेंस में एक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, that is called person. For example, the speaker wants to catch the wind. So इसमें सब्जेक्ट कौन है, the speaker who wants to do the job. Then number 2, the wind teases the speaker. अब इसमें सेंटेंस क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, द विंड. वाई, हु टीजेज द स्पीकर, स्पीकर को कौन टीज कर रहा है, तो जो कौन का आंसर है ना वही सब्जेक्ट है. हु टीजेज द स्पीकर, द विंड. सो सब्जेक्ट कौन है, द विंड. सिमिलरली पहले में हु वॉन्ट्स टू कैच द विंड, व्हाट इज आंसर, द स्पीकर. सो द स्पीकर इज द सब्जेक्ट. ओके, ये दोनों सेंटेंसेस में एक तो है द स्पीकर एंड द विंड. सिमिलरली इधर भी क्या है, द विंड एंड द स्पीकर. तो अभी हमें क्लियर है कौन सा सब्जेक्ट होता है, राइट. नाउ लेट्स गो टू प्रेडिकेट. ओके, सो व्हाट इज प्रेडिकेट, लेट अस सी अ सेंटेंस. द स्पीकर वॉन्ट्स टू कैच द विंड.
ये जो ब्लू में हाईलाइटेड है ना, तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है, want to catch, कैच करना चाहता है. What is action? Want to catch, that is the action. Similarly, in the second sentence, the wind teases the speaker. क्या होता है, tease होता है. So tease क्या है, tease action है, tease करना, परेशान करना, action, right? So जो action वाला part होता है subject में, that is called predicate. Okay? So predicate is basically, it tells about the subject or what the subject is doing. Okay? Predicate contains the action word. तो predicate में क्या होता है, action word होते हैं और the work या work होता है. So हमने sentence में क्या क्या read किया बच्चों, subject और predicate, ये हम समझ सकते हैं, right? अब जो बचा है वो है object. Okay? and object क्या होता है, for example let us see this sentence, the speaker wants to catch the wind. catch what? who का आंसर तो क्या है, subject. who wants to catch the wind, तो who का आंसर तो क्या है, subject. okay, the speaker. okay, so the speaker is subject and the speaker wants to catch the wind. so what does the speaker want to catch? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं what does the speaker want to catch, तो आपका आंसर है the wind and the wind is the object. मतलब what का आंसर क्या है, object. मतलब speaker क्या पकड़ना चाहता है, किसे पकड़ना चाहता है, विंड को. Did you understand? So wind is basically object. Similarly, the second sentence, the wind teases the speaker. Okay? So what does the wind do? The wind teases the speaker. और whom does the wind tease? किसको टीज करती है, स्पीकर को. तो स्पीकर जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया. क्लियर? सो यू सी हेयर एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज अ पर्सन और थिंग. तो सब्जेक्ट भी पर्सन या थिंग होता है और ऑब्जेक्ट भी पर्सन और थिंग होता है. टू हुम द एक्शन इज बीइंग डन, जिस पे एक्शन हो रहा है. टू फाइंड द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, और ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए सेंटेंस में क्या करना है, जस्ट आस्क द क्वेश्चन व्हाट एंड हुम. राइट? तो अभी मैंने क्या किया, आपसे वही सवाल पूछा. क्या सवाल पूछा, मैंने पूछा आपको व्हाट डज द स्पीकर वांट टू कैच एंड यू सेड द विंड. सो विंड इज ऑब्जेक्ट. सिमिलरली whom does the wind tease? wind teases the speaker. ओके, सो ये पूरा सेंटेंस है. अब इस सेंटेंस में आपको पता है सब्जेक्ट क्या है, द स्पीकर. want to catch, जो एक्शन वर्ड है वो क्या है, predicate. and remaining part, the wind क्या है, object. so now you know in sentence how to find the subject, object and predicate, right? Excellent. now let's come to this question. Identify the subject, object and predicate in the sentence. Number 1, the speaker calls the wind a nuisance. so who is the subject here? subject कौन है? who calls the wind a nuisance? कौन विंड को न्यूसेंस बोलता है? द स्पीकर. सो सब्जेक्ट इज द स्पीकर. क्लियर? देन एक्शन. एक्शन क्या है? कॉल. ओके, सो कॉल्स क्या हो गया? प्रेडिकेट. ओके, एंड ऑब्जेक्ट क्या है? किसको? हुम. ओके, सो व्हाट इज द आंसर? हुम का आंसर है द विंड, राइट? सो द विंड इज द ऑब्जेक्ट. ओके, सिमिलरली in the second sentence, what is the second sentence? The wind seizes her hat and clutches her hair. so who does that? the wind. तो subject कौन है? the wind. and action word क्या है? seizes. okay, so action word क्या है? seizes and clutches. so seizes and clutches क्या है? predicate. and what का आंसर जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हर हैट एंड हर हेयर. दिस इज ऑब्जेक्ट, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन, इट ऑल्सो टेयर्स द लीव्स एंड ब्लॉसम फ्रॉम द पेयर. सो इन दिस द सब्जेक्ट इज इट एंड देन एक्शन वर्ड क्या है? टेयर्स. ओके, सो टेयर्स इज द प्रेडिकेट. एंड व्हाट डज इट टेयर?
किसको टेयर करता है? द लीव्स एंड ब्लॉसम फ्रॉम द पेयर. दिस इज योर ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, आई लव विंडी डेज. सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? हु लव्स द विंडी डेज? आई. सो आई इज अ सब्जेक्ट. व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट क्या है? एक्शन वर्ड लव. सो लव इज प्रेडिकेट एंड लव व्हाट? व्हाट का आंसर क्या है? विंडी डेज. सो विंडी डेज इज द ऑब्जेक्ट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, विंड helps to fly the kite. Who helps to fly the kite? Wind, right? So wind is subject, then helps to fly. ये क्या हो गया? Predicate. So subject को मैंने S लिखा, predicate को मैंने P लिखा, and winds help what? To fly the kite. Okay? What does the wind help to fly? Okay? So the answer is the kite. So the kite is object. Object को मैंने लिखा O. Clear? Now next one, number 6. Wind can cause a lot of damage too. So who can cause the damage? Wind. Okay? So subject is wind and cause. Cause क्या हो गया? So wind is subject. Cause क्या हो गया? Predicate. And a lot of damage. Lot of damage क्या हो गया? Lot of damage is object. Clear? Excellent. Now C2. Add a suitable subject to each sentence. So each sentence में what you have to do? You add a suitable subject. जो suit कर रहा है वो subject आपको add करना है. Number 1. Loves to fly kites. Loves मतलब S या ES है verb में, तो हम सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट में. दैट मीन्स ही, शी, इट और नेम. तो यू कैन पुट वॉट एवर यू वॉन्ट टू पुट. यू कैन राइट ही लव्स टू फ्लाई काइट्स, वो भी सही है. यू कैन राइट शी लव्स टू फ्लाई काइट, वो भी सही है क्योंकि दोनों क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है. और यू कैन से गीता लव्स टू फ्लाई काइट्स, राम लव्स टू फ्लाई काइट्स. ये सब ठीक है बिकॉज सब्जेक्ट कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर. नाउ नेक्स्ट वन, डैश लव टू सेल पेपर बोट्स. यहाँ पे क्या है? लव. तो अब थर्ड पर्सन सिंगुलर तो नहीं आएगा और कुछ भी आ सकता है. दे लव टू सेल पेपर बोट्स, ये भी सही है. यू लव टू सेल पेपर बोट्स, ये भी सही है. आई लव टू सेल पेपर बोट्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. वी लव टू सेल पेपर बोट्स, correct. Ram loves to sell paper boats, correct. Akshi loves to sell paper boats, this is also correct. So आप कुछ भी आंसर लिख सकते हैं. Number 3. Dash helps to run windmills. Helps थर्ड पर्सन सिंगुलर. और वैसे भी विंड मिल को रन करने में कौन हेल्प करता है? विंड. सो क्या आंसर आएगा? विंड. WIND, विंड. और विंड क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट. नाउ नंबर 4. डैश आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो यहाँ पे क्या है? आर मतलब प्लूरल. ओके, तो क्या आंसर होगा? यू कैन पुट टर्बाइंस. ओके, व्हाट इज द स्पेलिंग? टर्बाइन, TURBINES. टर्बाइंस प्लूरल हो गया. सो टर्बाइंस आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज करेक्ट, राइट. So with this we stop here and you go through all the difficult words, go through the answers and learn all the difficult words. Thank you.